बिट्रेयल है वहाँ पे। बिट्रेयल अभी है, अभी भी उनका ऐसे प्रोसेस चल रहा है कि वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ये स्टिल आई वाज लाइक कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या हमें सच में चाहते हैं हम लोग यहाँ पे रहें। मैं लिख रही हूँ पेंट को उठा के और मेरे हाथ ऐसे काँप रहे हैं। और उस टाइम तक मुझे ऐसा हो गया था कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। मेरी मम्मा ने मेरी बहन को बोल दिया था कि इसको ना थोड़ी क्लिनजिंग करवा देना इसकी, घर में एंटर करने से पहले तो गंगा जल वगैरह कुछ डाल देना इस पर, तो सो दैट थोड़ा प्योर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है मंत्र बहुत, आप कोई भी मंत्र ले लो, अगर आप किसी भी गॉड में बिलीव कर रहे हो या कुछ भी बिलीव कर रहे हो, मंत्र आपको बहुत पॉजिटिव बना देते हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो समझ जाओ कि, और मुझे ना डॉक्टर की शक्ल दिखी ड्रीम में, तभी ड्रीम से उठी और मैंने गूगल पे सर्च किया, तब मेरे सामने जो फोटोज़ वगैरह आई लाइक शिट। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द बेसिक्स एंड बियॉन्ड। एंड आज हमारे साथ एक अमेजिंग स्पीकर हैं, स्वाति। हाय स्वाति, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? I am great, amazing. So last episode we had Anubhuti here, and obviously we had to had Swati here. We've seen your friendship as well on the show. We've seen Yeah. how you guys were ekdam saath mein, even in the last investigation. So the people who nahi jante, I'm sure people know you from either Roadies or from Dark Scroll or from how amazing you are and how brave you are. But jo nahi jante, for them, if you can give us chota sa introduction about yourself, that will be great. Okay, I'm Swati Gehlawat and I have worked in with Dark Scroll also, and before that I have done roadies. There I just cleared till PI. I didn't go for the journey, and that's all. I'm a fitness influencer also. Yeah, amazing. So अगर हम बात करें about your roadies journey, we have seen कि how amazing your PI round was. We've seen सोनू सर कितना impressed थे. We've seen yes. मैम कितनी impressed थी, right? What was your first experience from somebody who's coming from एक ऐसा background जिसके पास कुछ ऐसा नहीं है, like say कोई और show नहीं किया है या first reality Yes. TV show है, तो how was your experience there? How it started was also unknown to me. Like I was not always ready for this kind of stuff, but then comes a point that you want to start something, you want to explore everything in your life, and then I came to know that roadies auditions are going on. I just came to know about this 3 days before the auditions were going on. There was someone friend of my sister who sent me the picture of that screenshot, because I was not using Instagram, and at that time I was not using WhatsApp, Instagram. I was away from social media. It was like I don't have any connection with social media at all, so it was shared by someone else. So I was like, I think I should try. Maybe I have some personality, like I can go on this kind of show also, because I always know that I can do something better in my life. And if I have something that I can explore about, is like definitely I want to go there. I go to the auditions, like it was happens in 3 stages: GD1, GD2, and then PI. I went for GD1. I was very much chill, like it doesn't matter to me like if I'm going to win or lose, because I don't have hopes. When you don't have hopes and expectations from anything, then you are definitely going to give your 110%. And if you are not ready for the results, and you are like, I don't care whatever the results are, it is like I'm going to give my 100%. Then I gave GD1 and I came back home, and I was like, I don't know what is going to happen, but I have given my 100%, and it doesn't matter me. I have just seen, wow, this is a great thing. Like a lot of people are coming here in queues. They are standing from last nights, and they all are just so excited. You are shouting roadies, roadies from the queues. They used to get started. And then GD1 happens. I came back and I was like, I was telling everyone in my home that it was like that, it happens like that. And then suddenly I was just I don't know, I don't have any idea what is going to happen next, and when they are going to call us that you are selected for next round. Then at 2 a.m. I received a call in the morning. 2 a.m. I was sleeping and I was like, hello. It was so sleepy to me, and it was like, hi Swati. The voice was so dark, like it was in night. Yeah. Hi Swati, you are been selected for GD2 and you have to come here. They give me the address, and I was like, okay. Then I called my sister. No one picked it up because it was too morning, and I was like, oh my god, I just want to share this, that
Even I have cleared the first stage because there were a lot of people. Approximately 50,000 must be there. And from 50,000, you are selected. Means something is there in you that is unique about you. Right. Then they called me and I was like, okay, I'm going company. Then in the morning, what happened to me? It's a very nice thing, or it was like, I can say everything was testing me. I was going on the way. I was using maps in my mobile and I was on scooty. And somewhere on the breaker, or I don't know on which lights, I was going from Mohali to Panchkula on the way, and I dropped my mobile in the on the way, and I don't have mobile, and even I just know the hotel name somewhat, not completely. It was some long name. I forgot that hotel name. It was somewhere in Panchkula. Then I was like, oh my god, how am I going to go there? And I was like, no, yeah, this is the testing time. If you really deserve something, if you are really capable, then you will make out the way somewhere. Then I was like, I took someone else's mobile, I called on my mobile. Till then, it was switched off. Maybe, I don't know, maybe someone has picked or not. Then I asked that person was in the morning. There used to be very few person on the roads. It was 6 in the morning, and I was like, can you just give me your mobile? I have to search something. Then I searched on some related names to that hotels, and I know somewhere that location is there only. Then I saw that hotel name and location. I was like, okay, this is the hotel. Now I'm confirmed about the name. Then I was like, okay, I will find out the later one. I have to reach till there. Then I reached to the one stop there, and then again I asked for someone's mobile. Then because it was very early in the morning, and you have to reach on there on time because they all are waiting there for you. Then I reached there somehow. I reached there. Then after clearing GD2, they tell me they will call me within 10 to 12 hours, and I don't have my mobile. Then I started to find out the way how do I get my old number back within some time, because it may be possible they will call me 2 to 3 hours within. Then I came back. I checked it out for the later one that I can use some duplicate SIM card, or then मुझे duplicate SIM card मिल गया. Then I had small mobile keypad one. Then on keypad I received the mail that you have been cleared JD2 also, and you are going to invited for the PI round, and we will share you the information later on. And I was like, thank god, something bad was happening with me, but I covered it up with the good one. Yeah. So what happened in GDs? वहाँ पे GDs में क्या होता है? GDs में there are a lot of people. In a one room you will be put with 15 people who are all are like you. They are not like some big personalities, or normal people also come. Some big influencers also come there. You will be given 15 to 20 seconds. If you are capable enough, so you can take it up to 1 minute, but you just have few minutes to tell everything about yourself. They know nothing about you, and you have to present yourself in a way so that they can get impressed by you. This is what they just want, the personality. So you can impress anyone, or you get impressed by anyone. Yeah. This is what they want. They want personality. तो आपने what did you show? आपने क्या दिखाया था? Basically one thing is all about my personality is like I have some like my haircuts, my style, and also my boldness. And if someone is speaking, if someone is saying anything wrong about anything, then I'm always going to interrupt that person, and I never let anyone to speak against me. Or like if someone is saying thing, I'm like, I can cross on over you. It was like, and JD2 also I had fight with a very famous personality you must have known, Singha. He's a very big influencer on social media, so I had small fight with him and some chit chat like that. So maybe because of that, because he was a very healthy person, healthy weight. Used to look lean, and also I used to look cute on my face, but it's not like that. I have boldness also inside me. Yeah, absolutely. So this was about roadies. इसके बाद I have a question which I believe सब ही पूछना चाहेंगे.
इफ़ यू कैन जस्ट लेट मी नो, अकॉर्डिंग टू यू, क्या पैरानॉर्मल एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती? मैं शुरू से शुरू करती हूँ ठीक है। कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। मैं सच बताऊँ तो आई वॉज अ नॉन बिलीवर इन गॉड ऑल्सो। I don't believe in positive energies. I don't believe in negative energies. I believe in the present. Whatever you are seeing is there, and whatever is not visible is not there. Anyone, anything it is not. You are not visible to you. You are not feeling it. Then it is not present. और मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ यही वर्ल्ड है, इसके अलावा कोई वर्ल्ड नहीं है. बट शो में जाने से पहले भी मेरा यही एक्सपीरियंस था कि ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में. मतलब क्या बोल रहे हो तुम लोग कि कुछ भी ऐसा कोई बता रहा है कि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं. तो मुझे ऐसा लगता था कि ये ना माइंड क्रिएट कर देता है चीज़ें ना, कि आप सोचने लग जाते हो. इवन आप देख रहे हो किसी मूवी में देख रहे हो आप कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको दिख रही हैं, ऐसा पीछे से कोई आ रहा है, आवाज़ आई, एकदम से रात में उठे, बुरा सपना आया. तो मुझे ऐसा लगता था दिन में जो आप देख रहे हो वो रात में आपको दिख जाता है और आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं. बट डे वन पे मैं शो के लिए गई. मैं नॉन बिलीवर थी, सबको पता था. आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंस. भाई मुझे कौन डरा सकता है जब मैं मानती ही नहीं हूँ इन चीज़ों में, तो क्या हो सकता है. बट आपको पता है अगर आप पैरानॉर्मल वर्ल्ड को इतनी लाइटली लोगे ना, तो वो पता ये ऐसे सोचते हैं कि तू आ रही है ना, आज पहले तुझे ही देखते हैं हम, तुझे सबसे पहले एक स्टेप पे लेके जाते हैं कि हम दिखाते हैं तुझे कि है कुछ ना कुछ. तो मेरे फर्स्ट ही हमारी इन्वेस्टिगेशन थी, हमारी फर्स्ट लंबीधार माइंस में थी. वहाँ पे मुझे ना एक बच्चे का हाथ दिखा और वो इजीली विजिबल था कि वो किसी बच्चे का हाथ है. वो वहाँ पे एक ऐसे वॉल बनी हुई थी, वो वॉल पे ऐसे करके वो हाथ था, इतना तक हाथ था वो ना, उसके आगे कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो हाथ था. एंड आई वाज लाइक शिट मैन, व्हाट इज़ दिस. मैंने एक टाइम के लिए मुझे लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं है, ये मे भी मेरे माइंड ने क्रिएट कर लिया. बट एट द नेक्स्ट सेकंड मेरे साथ क्या हुआ, मेरे अंदर मुझे इतनी नेगेटिविटी फील होने लगी अपने अंदर कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी वो नेगेटिविटी. मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस हम लोग फेस करते रहते हैं, नेगेटिव भी होती हैं लाइफ में, पॉजिटिव भी होती हैं. बट उस टाइम पे जो नेगेटिविटी थी कि एकदम से रोना आ गया था मुझे ना. ऐसा हो रहा था कि आई वॉन्ट टू क्राई, मेरे साथ ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है और वो वेंट आउट करना चाह रही हूँ मैं उसको. तो मेरे आंसू आने लग गए थे उस टाइम पे. देन इट वाज द पॉइंट कि मैं उस पॉइंट पे स्टार्ट हो गई कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो हम मानना नहीं चाह रहे हैं, बट इस वर्ल्ड के बियॉन्ड भी एक वर्ल्ड है जो हम मे बी हम में से किसी ने एक्सपीरियंस ना किया हो. कई बार हम अवॉइड भी कर देते हैं ना चीज़ों को कि दिख रही होती है, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं माइंड ने क्रिएट कर दिया होगा. जैसे हमारे साथ कुछ भी कई बार नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं, हम किसी रोड से क्रॉस कर रहे हैं, हमें ऐसा लगा होगा कि वहाँ पे ना कुछ खड़ा था, बट फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं वैसे ही माइंड ने क्रिएट करा. तो हम अवॉइडेंस में ज़्यादा रहते हैं. मैं भी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे अवॉइड करके चलती थी कि नहीं नहीं अवॉइड करो इसको. एंड यू टोल्ड, मैंने आपका वो देखा जो पहले बिफोर डार्क स्क्रोल, आपने भी बताया कि यू आर फ्रॉम हरियाणा एंड वहाँ पे ये चीज़ें बहुत प्रेवलेंट हैं कि लोग बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों में. तो आप एक ऐसे बैकग्राउंड से ऑलरेडी आ रहे हो जहाँ पे इतना प्रेवलेंस है, तब भी यू वर अ नॉन बिलीवर इन यू थॉट? यस, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, मेरी मम्मा भी एक बार ना उनको एनकाउंटर हुआ था ऐसे ही रात में, रात के टाइम में, कि वो काफ़ी रात हो गई थी, 1-2 बज गए थे. मेरी आंटी के घर से वो लोग आ रहे थे, तो उन्होंने एक दूर से उनको लगा कि एक आदमी आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अंधेरा हो रखा है, चलो इसके पीछे पीछे क्रॉस कर लेंगे हम लोग ना गली को. उनको घूम के जाना था दूसरी तरफ. तो फिर उन्होंने सोचा चलो चलते हैं. उनके थोड़ी थोड़ी पीछे गए, फिर उनको लगा वो ना आ नहीं रहा, वो जा रहा है. फिर उन्होंने सोचा कि फिर वो थोड़ी पास गई तो वो लेडी दिखने लगी, बोलते हो ये तो एक लेडी है. फिर मेरी आंटी ने सोचा चलो इससे बात करते हैं पास जाके. तो उसने आंटी उसके मुंह के बाद ऐसे बोलते बोलते हेलो. तो फिर वो एकदम से ऐसे हो गए, उन्होंने वो उनके हाथ में कुछ पॉलीथीन वगैरह आ गई, वो ऐसे ऐसे झड़काने लग गए उनके ऊपर. फिर वो दोनों भाग लिए डर के ना. फिर मम्मा मेरे से ये एक्सपीरियंस बताते रहते थे, तो मैं सोचती थी आप लोग ना वो शुरू से ही लेडी होगी और आप बेकार में उसको छेड़ रहे होगे, वो बीच में जा रही होगी. तो हर लॉजिक आप ढूंढने लग जाओ ना, किसी को भी कहीं पे भी कनेक्ट कर लो, वो कनेक्शन हम बना लेते हैं. करेक्ट. तो मैं भी ऐसे ही करती थी. बट कई बार ऐसा होता था कि आप देखते हो कई लोग, जैसे हम जगराता वगैरह में भी जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं उनमें माता वगैरह आ गई. तो उन सब के लिए मुझे ऐसा लगता था इनके ना कई बार कोई ट्यून वगैरह होती है,
जिसकी वजह से माइंड में ना ऐसे मतलब सीक्वेंस बनता चलाता है और इंसान के अंदर ना एनर्जेटिक फील होने लग जाता है कई साउंड्स वगैरह सुन के। तो इसी वजह से उनको लगता है कि उनके अंदर एनर्जी आ गई, बट वो मे बी उस ट्यून की वजह से हो रहा था। तो मैं ऐसे ऐसे लॉजिक देती रहती थी, घर वालों को भी बोलती थी कि मैं क्या इनको ना ऐसे लोग बोल रहे हैं कि माता आ रही है, बट इनको ना साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ओके ओके। एंड जस्ट लाइक यू टोल्ड कि आपकी मदर का ऑलरेडी कुछ ऐसा एनकाउंटर रहा है जो प्रॉब्ली उनके लिए पैरानॉर्मल होगा, हाँ, है ना? तो जब ये डिसाइड हुआ दैट यू गोइंग इनटू डार्क स्कूल, वाज शी ओके विद इट? मतलब वो बिल्कुल ठीक था कि चलो ठीक है, सपोर्टिव ऑफ यू गोइंग? हाँ, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, मैं कुछ भी चूज़ करूँ देर लाइक कि तू करना चाहती है, तू कंफर्टेबल है। मैंने कहा हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ ऐसा है भी तो मैं भी देखूँ कि क्या होता है भाई। मुझे भी पता चले, मैं भी किसी को कुछ बता सकूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, या फिर मैं बिल्कुल ऐसे हो जाऊँगी कि होता है भाई मान जाओ, अगर नहीं मान रहे तो वहाँ वहाँ जाके इनकाउंटर कर लो खुद ही। तो देवर लाइक कि ठीक है अगर तू कंफर्टेबल है तो जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, मेरी मम्मा, मेरी बहन, मेरे दोस्त, दे ऑल आर लाइक कि तू कर कुछ भी कर अपनी लाइफ में, हम लोग पीछे खड़े हैं, गिरेगी तो हम उठा लेंगे। अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। ये बहुत कम लोगों को मिलता है ना। हाँ हाँ, दे ऑल आर लाइक टू मी कि मेरी दोस्त हो गई, मेरी मम्मा, मेरी बहन, ये तीनों लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं ना कि तू कुछ भी कर अपनी लाइफ में, हम तुझे गिरने नहीं देंगे, और अगर गिरी तो संभालने के लिए हम हैं, बस तू करती रहे। और ये कोई बोल देना और बेशक ना भी हो पाए उस टाइम पे, तो आपको ये पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, आप गिरते भी नहीं हो लाइफ में। करेक्ट, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो जब ये पूरा सिलेक्शन हुआ, एवरीथिंग, योर पेरेंट्स वर सपोर्टिव, योर फैमिली वाज सपोर्टिव, बट आपका क्या माइंडसेट था? मतलब फॉर इंस्टेंस लेट्स बिलीव कि अब अगले दिन जाना है हाँ फॉर हाँ द हाँ लोकेशन, राइट? तो आपने से बोला इन योर इंटरव्यू कि मेरे पास स्ट्रैटेजी थी पूरी कि मुझे क्या करना है। तो वो क्या स्ट्रैटेजी थी इन योर हाँ, हेड? मैं बताती हूँ। मैं क्या सोच रही थी कि वहाँ पे जाएंगे, हमारे पास कैमरामैन्स होंगे साथ में। मैं सोच रही थी कैमरामैन साथ में है, कैमराज लगे में, कौन पागल होगा जो डरेगा। ये होता है ना दिमाग में कि बिना कैमरा के शूट कैसे होगा। और स्ट्रेटजी मेरे पास ये थी कि अगर मुझे कुछ एनकाउंटर हुआ भी, मे भी कुछ हो गया प्रेजेंट वहाँ पे, तो मैं संभाल लूँगी, क्योंकि मैं डरती तो हूँ नहीं, सामने से देखेंगे, अगर बात करने का भी मौका मिल गया तो बात भी कर लेंगे। ओके, ठीक है। बट वहाँ जाके ऑपोजिट हो गया, कोई कैमरामैन नहीं था? वहाँ जाके इतना अपोजिट हुआ कि एक छोटी सी लाइट दे दी, हाथ पे लगा दी, जो सिर्फ इतना देख सकती थी स्टेबल के बस आगे तक। और एक लाइट हमारे एक फेस पे कैमरा के लिए थी, वो एक आंख में चुभती रहती थी, एक आंख से देखना पड़ता था। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा होता था। तो फिर एक आंख से कितना ही देख पाएगा इंसान। और एक जब आपको कम दिख रहा हो ना, तो और ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है अंधेरे में। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम रात को उठ भी रहे हैं ना, ज़्यादा अंधेरा हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि एकदम से अभी लाइट चाहिए, देखें आसपास क्या है, वो क्यूरियोसिटी हो जाती है। और छोटी सी लाइट से आप किधर ही देख लोगे, एक बार उधर घुमाओगे, एक बार उधर घुमाओगे, ऐसा लगेगा इधर भी देखना है और इधर भी देखना है। ट्रू। सो अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन लंबी दहाड़, जिधर यू सेड कि यू बिकेम अ बिलीवर, राइट? अगर बिलीवर ना भी बोले तो यू हैड दिस फेथ कि कुछ तो है अब, right? बिलीवर तो मैं नहीं बनी थी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में। मुझे ये हो गया था कि कुछ तो है जो मतलब इस वर्ल्ड के बियॉन्ड भी है, जो हम शायद मानना नहीं चाह रहे, कुछ है इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड जैसी कुछ चीज़ है। एक हमारा वर्ल्ड है और एक वो वर्ल्ड भी है जहाँ पे ना लोग अपनी कुछ उनकी चीज़ें रह जाती हैं डेथ के बाद। जैसे हमारे कोई लव्ड वन कुछ प्रॉब्लम में रह जाता है, हम चले जाते हैं, तो हम वो ना सीक्वेंस फॉलो करते रहते हैं। हमारा जैसे कोई डेली रूटीन के लिए बहुत हैबिचुअल है, वो मर जाता है, उसकी कुछ जैसे सपने होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो उस लूप में ही चलता रहता है। वो लूप जो है ना वो तोड़ नहीं पाता है वो, और उसको ऐसा लगता है कि वो अभी भी लूप चल रहा है, अभी भी वर्ल्ड सेम, उसके लिए ना वो लूप कभी टूट ही नहीं सकता है। तो दैट इज़ पैरानॉर्मल वर्ल्ड, उसमें लूप में चलते रहते हैं, वो जो फेज़ है उनका वो आज भी चल रहा है। इट इज़ वेरी मच मतलब बहुत डीप है पैरानॉर्मल वर्ल्ड ना, जितना भी मैंने देखा। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि एंटिटीज़ भी बहुत तरह की हैं। कुछ एंटिटीज़ फिज़िकल प्रेजेंट्स शो कर देती हैं, कुछ सिर्फ नेचर के थ्रू शो करती हैं, कुछ खुद को दिखाना ही नहीं चाहती, कुछ बात ही नहीं करना चाहती, कुछ अपने ही उस लूप में बिजी हैं।
और कुछ ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ आपके इमोशंस पे हार्म करती हैं, कुछ आपके वीक पॉइंट्स पे हार्म करती हैं, कुछ आपकी बॉडी में फिजिकली कहीं कोई पार्ट वीक है वहाँ पे हार्म करेंगी आपको। तो मतलब वो ना ट्रिगर करती हैं आपको भी। पर अगर हम वही बात करें, जैसे आपने कहा कि आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ लेते थे, राइट? तो अगर मैं पहली इन्वेस्टिगेशन को देखूं, तो इसमें तो वो लॉजिकल स्वाति ये भी तो बोल सकती है कि वो शायद मेरे दिमाग में ही था जो हाथ दिखा, या जो मेरे को फील हुआ, प्रोबेबली बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, स्टोरी ऐसी थी उस जगह की और सब कुछ, तो वो भी तो हो सकता था। मैंने उसके लिए मैंने खुद को, मैंने आने के बाद हम जब शूट से हमारे होटल में वापस आए, तो मैं आराम से बैठ के मैं सोच रही कि क्या हुआ था वहाँ पे, मतलब सच में क्या हुआ था। दिमाग इंटरप्रेट करता है ना कि याद कर क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे चल रहा था। सब बढ़िया चल रहा था जब उस पॉइंट पे, जब तक मैं वहाँ पे घूम रही थी, नीचे थे हम बेसमेंट में, तब तक सब सही चल रहा था। जैसे ही हम लोगों ने ट्रिगरिंग का प्रोसेस हमारा पूरा होने के बाद क्वेश्चंस की बारी आई ना, जब हम लोग ऊपर गए, तो जब अगर मैं सोचती कि मैंने अपने माइंड में पहले चीज़ें बनाई होती, तो मैं थोड़ा बहुत बिलीवर होती। अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल भी रहा है ना, तो फिर मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा होता कि हो सकता है चीज़ें हों, बट ये मेरे दिमाग में 1% भी नहीं था कि मैं ये सोच रही हूँ कि शायद कुछ चीज़ें हों। मैं ये सोच ही नहीं रही थी कि कुछ चीज़ें हों, तो वो दिमाग ने कैसे बना दिया। और दूसरी बात, जो मुझे हाथ दिखा वो इतना क्लियरली था ना कि मैं उसको भूल नहीं सकती। मुझे आज भी याद है, वो इतना सा हाथ था और वो बच्चे का हाथ था, इजीली विजिबल था मुझे। तो वो चीज़ मेरा माइंड क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने सोचा होता कि कुछ दिखेगा, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ थी कि कुछ नहीं दिखेगा, हमें डिवाइसेस दिए गए हैं, हो सकता है इन पे आंसर्स आएँ, कुछ ना आए तो भी ठीक है। और लाइट ब्लिंक्स के लिए था फर्स्ट में हमारे पास रैम पोर्ट था, अगर आएंगी तो भी ठीक है, बट मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कुछ दिख भी जाएगा। उसके लिए तो मैं रेडी ही नहीं थी कि कुछ दिखेगा भी। तो वो मैं लॉजिक खुद को दे ही नहीं पाई कि ये हो सकता है मैंने क्रिएट किया हो, क्योंकि मैं क्रिएट कर ही नहीं रही थी। करेक्ट करेक्ट, वो आई थिंक वो लॉजिक भी आप अपने अंदर से ही ला सकते थे ना। हाँ। अगर वो लॉजिक जो पहले आप बोल रहे थे वो आपके अंदर से आ रहा था, तो दिस यू ओनली नो कि आपने क्या फील किया, Yes. राइट, एंड क्या बिलीव किया। करेक्ट। तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन थी आपकी डूंगा हवेली, हाँ हाँ कैसा था? आई मीन अनुभूति के लिए तो इट वाज रियली ड्रामेटिक व्हेन वी हाँ। टॉक्ड टू हर लास्ट टाइम आल्सो, शी वाज लाइक डूंगा हवेली वाज समथिंग, सो आई रियली वांट टू नो योर एक्सपीरियंस एज वेल। डूंगा हवेली में मैं जो थी, मुझे ट्रिगरिंग का प्रोसेस दिया गया था। करेक्ट। और फर्स्ट वाली में क्या हुआ था कि हम सब लोग ना साथ में अंदर जा रहे थे, मैं ट्रिगर बन गई अकेले। अब जाना है अकेले अंदर। मैं सोच रही भाई फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हो गया, तो इतना तो बिलीवर में आ गई कि कुछ तो है जो एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर कुछ मतलब पैरानॉर्मल वर्ल्ड में कुछ एंटिटीज़ नहीं है, तो नेगेटिविटी तो उस प्लेस पे डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है, तो ऑफ कोर्स प्लेस नेगेटिव हो जाती है। मैं डूंगा हवेली में अंदर गई। मुझे मुझे वो भी कुछ ऐसा लगा कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड ना आपको चूज़ करता है, क्योंकि हो सकता था मुझे कोई और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ और टास्क दे दिया जाता, बट मुझे गिटार ही दी गई। और गिटार मुझे नहीं पता पैरानॉर्मल वर्ल्ड ने किस तरह से चीज़ें चूज़ की, या फिर कुछ कैसे आपकी डेस्टिनी में चीज़ें डाली, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लग गया कि गिटार ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं बचपन से मुझे गिटार का बहुत शौक है। देखा मैंने शो पे। हाँ तो गिटार का शौक है और मुझे गिटार ही तोड़नी है। तो मे भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड भी आपको टेस्ट कर रहा है कि क्या आप अपने जिन चीज़ों से प्यार करते हो उनको आप अपने से दूर कर सकते हो, और जिन चीज़ों से आपको खुद प्यार है, क्या आप उन चीज़ों को लेके सामने वाले को ट्रिगर कर सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी से भी दोस्ती है या कुछ भी है, तो मुझे पता है वो बंदा ना किस चीज़ से ट्रिगर होने वाला है, मुझे पता है उसका वीक पॉइंट्स क्या है। तो अब मुझे गिटार से खुद ही प्यार है, तो मुझे पता है सामने वाले को कितना प्यार होगा। और वो तो जो हम जिसको मुझे ट्रिगर करना था, वो जो लेडी थी वहाँ की, वो काफ़ी अच्छा गिटार प्ले करती थी, वो म्यूजिशियन थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा सीख रखा था। वहाँ पे हमें स्टोरीज़ में भी बताया था कि लोगों को ना अभी भी वहाँ से आवाज़ें आती हैं कि कोई गिटार वगैरह, वोयलिन वगैरह, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजता रहता है वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद मुझे एक जो जहाँ पे हमें गिटार रखी थी, जहाँ पे पूरा टास्क इन्वेस्टिगेशन करनी थी, मुझे ट्रिगरिंग करनी थी जहाँ पे, वहाँ पे मैं घूम ली, मैं पूरी हवेली में। मैं वहाँ पे जा ही नहीं रही, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है इस डोर जो वो दरवाज़ा है ना, उसके उधर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो हो सकता है वहाँ पे हो ही ना गिटार, तो बाकी में ढूंढ लेते हैं।
तो मैं पूरे में ढूंढ रही बट नहीं मिली। फिर लास्ट में मैंने सोचा अब तो पक्का वहीं पे है, इसीलिए वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी थी। मैं जैसे ही एंटर की, मैं एक्लेमेटाइज करना होता था हमारे ना फर्स्ट प्रोसेस में, तो सो दैट यू कैन फील दैट प्लेस और आप वहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएं एक्लेमेटाइज करने के बाद। सो वही एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस होता था। और मैं जैसे ही आइज़ क्लोज कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रही हैं आइज़ क्लोज, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आइज़ क्लोज तो नहीं करनी है, मुझे देखते रहना है, क्योंकि साइड से ना आवाज़ें आ रही थी किसी के चलने की, मुझे बार बार आ रही थी। वहाँ पे ना मिट्टी का फर्श था, ऊपर नीचे जैसे खंडर जैसे हो जाता है ना वो था, बट आवाज़ इतनी क्लियर थी जैसे फ्लोर पे शूज़ चल रहे होते हैं, ऑक्सफोर्ड शूज़ की जैसी आवाज़ होती है ना फ्लोर पे चलने की, बिल्कुल क्लियर जो। एग्जैक्ट, यू कुड हियर। हाँ, इतनी क्लियर आवाज़ आ रही थी। तो एक्लेमेटाइजेशन का जैसे ही प्रोसेस ख़त्म हुआ, मेरा ट्रिगरिंग का शुरू हो गया। ट्रिगरिंग का प्रोसेस मेरा इतना ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रिगरिंग स्टॉप भी करनी है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, गुस्सा मेरा नेक्स्ट लेवल चला गया। मैं हरियाणवी लैंग्वेज यूज़ करने लग गई बीच में ना, कि इतना एक्सट्रीम एंगर, क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम एंगर पे पहुंच जाते हो ना, तो आप लैंग्वेज का बैरियर ख़त्म हो जाता है, जो आप सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ करते हो उस पर पहुँच जाते हो आप। तो मैं हरियाणवी यूज़ करने लग गई। वो फिर उसके बाद मुझे पता चला, आर्यन जब अंदर आता है बोलता है ट्रिगरिंग ख़त्म हो गई है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। मैंने कहा ओके, देन आई टुक 20 to 30 seconds टू काम माई सेल्फ डाउन, कि ठीक है अभी ट्रिगरिंग ख़त्म हो गया, अभी हमें नेक्स्ट करना है। उसके बाद भी काफ़ी सारी आवाज़ें आती रही। डूंगा हवेली अपने आप में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लेस है, एक्सट्रीम नेगेटिव बोलते हैं ना आपकी। वहाँ पे एक लव स्टोरी भी रही है, किसी की पेनफुल स्टोरी है, इतने लोगों की डेथ हुई है, फैमिलीज़ की। फैमिलीज़ सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे लिए भी। हम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने पे उतर आते हैं कि मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, इनके लिए तो कुछ भी करूँगी मैं अपनी लाइफ में। और वहाँ पे इतनी एक्सट्रीम चीज़ें हुई हैं, तो उनके सबके पेन वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अगर आपके सामने आपकी बहन, भाई, चाचा, ताए सबकी डेथ हुई है, तो पेनफुल तो चीज़ें होती हैं वहाँ पे। बिट्रेयल है वहाँ पे। बिट्रेयल अभी है, अभी भी उनका ऐसे प्रोसेस चल रहा है कि वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ये स्टिल वहाँ पे ऐसे फील होता है कि यहाँ पे सेम होली रंगों की मनाई जा रही है, सेम उसी वही प्रोसेस चल रहा है। वो जो लेडी है अपने उसके फियोंसे के लिए वेट कर रही है, अपने लवर के लिए वेट कर रही है कि वो आएगा एक दिन, उनकी शादी होगी। सेम चीज़ें लूप में चल रही हैं उनकी आज भी चीज़ें, डूंगा हवेली में ना अब आज भी उनका लूप सेम कंटिन्यू है। एंड आई थिंक वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका भी था कुछ। तो ये तो बहुत मल्टीपल्स हो गए ना, फैमिली तो है ही। हाँ हाँ, वहाँ पे मल्टीपल्स था। जो वो गार्ड था वहाँ पे, उसकी क्या स्टोरी थी कि वो ना ऐसा लग रहा था उसको कि कोई चोरी करने आया है, बट जो चोर थे ना उन्होंने चोरी करके उसको गार्ड को मार दिया था। और वो गार्ड आज भी अपनी रखवाली करता है, इतना लॉयल है वो अपने मालिक के लिए, अपने उनके लिए जिनके लिए वो काम करता है, कि वो आज भी उनके घर की रखवाली कर रहा है उसी डोर पे। जो फर्स्ट पॉइंट था वहीं पे हमारा जो एक एंटिटी थी वो प्रेजेंट ऑलरेडी थी। ये सच में बहुत डीप है अगर हम सोचें हैं वो पैरानॉर्मल loop को। वर्ल्ड इतना डीप है कि हम कितनी भी बातें करें उसके बारे में हमारे पास बातें ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने भी कितना भी हम लोगों ने देखा है, अलग अलग तरह की एंटिटीज़ को एनकाउंटर किया है, बट वो इनफ नहीं है। उसके अलग भी बहुत, हमारा भी एक वर्ल्ड है, बट आप एक ये डिनाई नहीं कर सकते सिर्फ हमारा ही वर्ल्ड है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो चल रही हैं, हमें पता ही नहीं है वो चल रही हैं हमारे आसपास। करेक्ट। तो उसकी अगली इन्वेस्टिगेशन पे चलते हैं। हाँ जी। राधा भवन। राधा थर्ड। भवन। हाँ जी, राधा भवन। कैसी क्या था? राधा भवन मेरे लिए डरावनी नहीं थी बिल्कुल भी। ओके फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि राधा भवन इज़ लाइक गुड टू मी। ओके। मैं वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, लव, अफेक्शन वो सब दिखाया गया। घोड़े मुझे दिखे थे वहाँ पे, वाइट हॉर्सेस, बहुत ब्यूटीफुल हॉर्सेस। जहाँ पे मैं एक्लेमेटाइजेशन के लिए खड़ी थी, मैंने आइज़ क्लोज की अपनी, और मैंने जैसे ही आइज़ क्लोज की, इतने सुंदर घोड़े मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। जैसे हम देखते हैं ना कि फेरी टेल्स वगैरह की स्टोरीज़ में सुंदर सुंदर घोड़े वाइट कलर के वो आपको दिख रहे हैं, तो बहुत। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लेस मुझे ऐसे बोल रही है कि यू आर अटैच टू दिस प्लेस। वो अटैचमेंट शो कर रही थी मुझे। कई बार आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें लैक कर रहे हो ना, पॉजिटिविटी में भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लैक हो रही है, और आप में भी लव और अफेक्शन आपको अपनी लाइफ में प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, या फिर आप सीख कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो आपको वो चीज़ दिखा देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि दिस प्लेस इज़ गुड,
दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ लव फॉर मी, और आई नीड नॉट टू लीव दिस प्लेस। करेक्ट, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है। हाँ, और जैसे हमारा क्वेश्चन राउंड जो होता है उसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि आप खुद से पूछ सकते हो, अब आपने 2 इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अब आप रेडी हो कि आप नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में खुद से कोई क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो। तो मेरे साथ एंजल और आर्यन थे उस वाली इन्वेस्टिगेशन में। तो एंजल से मेरी थोड़ी बहुत खिचपिच हो गई थी ना बीच में भी। तो आई वॉज लाइक कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या हमें सच में चाहते हैं हम लोग यहाँ पे रहें, क्या ये प्लेस हमें चाह रही है, या जो भी एंटिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है क्या ये चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रुकें। तो वो लोग बोलते तू पागल है, क्या क्वेश्चन पुट ऑन कर रही है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब तू क्यों रहना चाहेगी इस प्लेस पे, और अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो क्या करेंगे हम लोग। सो आई वॉज लाइक कि थोड़ा सा तो पॉइंट ठीक है, बट मेरे अंदर ये था कि नहीं चल, 2 लोग अब इस चीज़ को मना कर रहे हैं तो मैं शायद ओवर नहीं होना चाह रही हूँ उस टाइम पे। तो बट मेरे अंदर ये था कि मैं तो यही क्वेश्चन पूछना था। फिर आने के बाद हमने हमारे शेयर करते हैं हम क्या क्या हुआ। तो सरबा और पूजा ने मुझे बताया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं थी, ये आपको ना अटैच कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी वो चीज़ें। करेक्ट। तो राधा भवन की स्टोरी क्या थी? राधा भवन की स्टोरी, एक स्टोरी नहीं थी वहाँ पे। पहले राजा होते थे वहाँ पे कोई, फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने वो कब्जा कर लिया था, फिर उसके बाद उनकी लड़ाई हुई थी। वहाँ पे जो भी आ जाता था ना, बहुत ब्यूटीफुल सी एक हिल पे था वो ना, इतना अच्छा व्यू था आसपास का। उस दिन थोड़ी फोग थी, बट उससे पहले का भी इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, मैं बताना भूल गई आपको। जैसे ही हम शूट लोकेशन पे पहुँचे, आपने देखा होगा कि जब हमें ओवरव्यू देते हैं प्लेस के बारे में, हम सब वहाँ लोकेशन के आगे खड़े होते हैं, हमारे ब्लाइंड फोल्ड्स करके हमें ले जाया जाता था वहाँ पे। हम पीछे लोकेशंस नहीं देखते थे, हमारा सामने की तरफ होता था, तो हम अलाउड नहीं होते थे टर्न बैक करना। तो बट उस ब्रीफिंग में मैं थी नहीं। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंची, ब्रीफिंग के लिए हमें खड़ा किया गया था उस प्लेस के आगे, बट मुझे इतने गंदे चक्कर आए, मैं खड़ी नहीं हो पाई। मैंने बोला आई नीड टू सिट, मैं बैठ गई वहाँ पे, 5 मिनट के लिए मैं बैठी, बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहाँ ना खड़ी हो सकती हूँ ना मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, मुझे कहीं और ले चलो। तो फिर देवर लाइक कि ठीक है तू रेस्ट कर, मुझे टेंट में ले गए, वहाँ पे मुझे चाय कॉफ़ी वगैरह दी। वहाँ पे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, बट उस जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा हैवी और चक्कर आने लग गए थे कि मैं खड़ी भी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती हूँ। तो मैं ब्रीफिंग के टाइम पूरे टाइम नहीं थी उस दिन शूट पे। ये भी प्रॉब्ली कुछ साइन था कि तुम कुछ किसी जगह पे आए, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जहाँ पे तुम आए हो हम यहाँ पे हैं, वो मुझे पहले ही अपना शो कर रहे हैं कि तुम फील कर पा रहे हो। पैरानॉर्मल वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कितना फील कर पा रहे हो तुम लोग। कई बार हम खुद को ना एक डिनाइल मोड पे ले जाते हैं, एक न्यूट्रल पॉइंट पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ भी चीज़ फील करना चाह रहे हो तो एक्सट्रीमिस्ट मत बनाओ, ना तो एक्सट्रीम ये बोलो कि आई बिलीव, ना एक्सट्रीम ये बोलो कि आई डोंट बिलीव। एक न्यूट्रल पॉइंट पे रहो, अगर कुछ फील हो रहा है तो वो देखो क्या फील हो रहा है। तो न्यूट्रल पॉइंट पे रहना, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल रहेगा वो सबसे ज़्यादा फील कर पाएगा उस चीज़ को। करेक्ट। तो अगर अगर एक लोकेशन की बात करें जहाँ पे यू वर द मोस्ट हॉरिफाइड, या सबसे ज़्यादा डर लगाओ आपको, या आपको जहाँ आपको सबसे ज़्यादा लगाओ कि मतलब यहाँ क्यों आ गई, मैं यहाँ नहीं आना था, तो वो कौन सी लोकेशन होगी? हमारी जो लोकेशंस चल रही थी ना वो स्टेप बाय स्टेप चल रही थी कि अभी थोड़ी सी इजी है, शुरू में हमें थोड़ी नॉर्मल जगह पे ले गए, उसके बाद थोड़ी उससे बड़ी पे लेके गए, उसके बाद फिर वो लोग हमें 1 बाय 1, ताकि हमें भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम भी पहले देख लें कि नॉर्मली पैरानॉर्मल वर्ल्ड है क्या। देन उसके बाद जो लास्ट लोकेशन थी हमारी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हॉरिफिक थी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था वो, माउंट करके था, माउंट एबट हॉस्पिटल था वो। तो फिर वहाँ पे मुझे पहले अकेले जाना था, एज ट्रिगर थी मैं, तो मुझे अकेले जाना था। तो मैं जैसे ही अंदर जा रही, मैं दरवाजे खोलती जा रही हूँ, नेक्स्ट डोर, बट दरवाजे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इतना लंबा पहुँच गए हम। फिर जैसे ही मैं अंदर गई, वो पूरा वुड का बना हुआ था ना, वहाँ पे टेंजेंट जैसी स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। कई बार वो बहुत एक्सट्रीम हो रही थी, कई बार आ ही नहीं रही थी। जो पंजेंट जो स्मेल होती है अजीब सी होती है, वो वुड में से वैसी स्मेल बेसिकली आती नहीं है। तो वहाँ पे, और मुझे क्या करना था, मुझे एज अ डेड बिहेव करना था, और वहाँ पे आप लेट जाना आपको स्ट्रेचर पे और डेड बिहेव करना है, और ऐसी प्लेस पे आपको साइड में से आवाज़ें आ रही हैं, आपको ये लग रहा है साइड में कोई घूम रहा है,
और मुझे ऐसा फील हो रहा कोई मेरे हेड को टच कर रहा है, क्योंकि मैंने ना बैंडेज बांधी थी अपने सिर पे कि मुझे चोट लगी हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेचर पे हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे शायद इलाज करने के लिए वो डॉक्टर मेरे पास आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही, धीरे धीरे स्टेप्स आए मेरे पास, देन आई फील समथिंग टच्ड ऑन माई हेड एंड आई वॉज लाइक ओके काम डाउन, दिस इज़ ट्रिगरिंग एंड दिस इज़ एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस, फर्स्ट फेज था। एंड आई वाज लाइक ठीक है, जल्दी से अनुभूति अंदर आएगी, वो रिंग ढूंढेगी, जल्दी से ख़त्म होगा। बट उसको ना रिंग मिल रही है, वो ढूंढ रही है, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जल्दी से ख़त्म हो, ये जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि बहुत बहुत लंबा हो गया था वो। मुझे बार बार फील हो रहा है कि कोई टच कर रहा है हेड को, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी ना राइट लेग में मुझे इंजरी हुई थी 1 साल पहले, बट मुझे पेन लेफ़्ट लेग में हो रहा था उसी जगह पे जहाँ पे राइट लेग में इंजरी हो रखी थी। इतना वियर्ड एक्सपीरियंस था ना वो, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पेन तो मेरी राइट लेग में था, बट वो लेफ़्ट में कैसे फील हो सकता है मुझे। वहाँ पे ठंड नहीं थी इतनी ज़्यादा, एकदम से मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने जैकेट डाल रखी थी ऑलरेडी उसमें ना, और अंदर कोजी प्लेस थी, वो बहुत गर्म थी, बट स्ट्रेचर पे लेट के पूरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। मतलब आप सब एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको टच एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको टेम्परेचर एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको पेन एक्सपीरियंस हो रहा है, एंड यू आर लाइक ये लास्ट इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा माना जा सकता है कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो कि यू हैव टू बिहेव लाइक डैड। आप उठ नहीं सकते वहाँ से, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन ख़राब हो जाएगी अगर आप वहाँ से उठे तो, क्योंकि उसके बाद भी ट्रिगरिंग का प्रोसेस शुरू करना है। मेरे दिमाग में बार बार एक ही चीज़ चल रही कि जल्दी से ख़त्म हो। और उस लास्ट इन्वेस्टिगेशन में मैं अपने अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया मैंने। आई वॉज़ लाइक कि आज हनुमान चालीसा की मुझे सच में ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, आपको 1 सेकंड भी ना बहुत लंबी लगती है, बहुत ज़्यादा लंबी लगती है। करेक्ट, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हम लोगों ने 100%। और आप तो इतनी देर वहाँ लेटे हुए थे, आई एम नॉट श्योर कैसे बट किसी को भी आई थिंक उसकी स्टोरी ही फॉर व्यूअर्स, फॉर समबडी हु इज वाचिंग, वो बहुत हॉरिफाइंग है, एंड टू लिव इट देयर इनसाइड, वो तो और बहुत वो ही करते ही ये थे ना कि लोगों को बीमार करके उन पे एक्सपेरिमेंट करते थे, उनको मार के करेक्ट। धीरे धीरे डेथ देते थे ना उनको वो। सो आपको पता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल वर्ल्ड, वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है। इवन पूजा और सरबा ने बहुत बार ट्राई किया था वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की, बट उनको परमिशंस मिली नहीं थी, क्योंकि कोई भी वो मुक्ति कोठरी में अलाउड था ही नहीं एंटर करना। और हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पे एंटर कर रहे हैं ना, उन लोगों ने हमसे पहले वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया हर बार जैसे वो करते थे। सो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो ट्रिगरिंग का था, उसमें आप ट्रिगर कर रहे हो एक ऐसे इंसान को, इस ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी को, आप उसकी जॉब के लिए ट्रिगर कर रहे हो, आप उसको बार बार पोक कर रहे हो। और ऊपर से जो रेड पेंट था वहाँ पे, उसमें मुझे लिखना था कि डॉक्टर मॉरिस इज़ अ किलर। मैं लिख रही हूँ पेंट को उठा के, और मेरे हाथ ऐसे काँप रहे हैं। मुझे पता है उस दिन क्या हो रहा था मेरे साथ, बट आई वॉज लाइक कि मुझे 100% देना है अपना। और उस टाइम तक मुझे ऐसा हो गया था कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, बट वो हमारे और उनके बीच में भी एक बाउंड्री है, जो शायद वो लोग भी क्रॉस करने से डरते हैं। जितना हम लोग उन चीज़ों से डर रहे हैं, वो लोग भी उस बाउंड्री पे एक थोड़ा सा उनको भी डर है कि ये बाउंड्री क्रॉस होने से। तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल रहा मुझे, वो हॉरिफिक था मेरे लिए डॉक्टर मॉरिस के साथ। एंड इवन आपकी इन्वेस्टिगेशन से पहले आई सॉ कि आपको वहीं पे अक्लेमेटाइज करना था, वही एरिया में, एंड वहाँ पे अनुभूति कुड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, कुड फील अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड बाकी लोग बहुत परेशान हो रहे थे उससे कि तू क्यों डरा रही है हमें, राइट? सो हाउ वाज दैट वहाँ पे कि पहली बार यू गाइस एक साथ में एक्लेमेटाइजिंग, हाउ वाज दैट? हमारी फाइनल इन्वेस्टिगेशन थी, ये हमें भी नहीं पता था। तो हम लोग वहाँ पे सब पहली बार सब इकट्ठे हो गए, हम देख रहे थे कि कौन कैसे एक्लेमेटाइज करता है। सबसे हॉरिफाइंग था अनुभूति का एक्लेमेटाइजेशन। वो इधर उधर कभी कभी सामने खड़ी है, सीधा दूसरे वाले के पीछे जा रही है वो। मतलब हम बोल रहे तू कर क्या रही है, तू ठीक है, तू ऐसे एक्लेमेटाइज करती, आंखें इतनी मत फाड़ अपनी कि हमें तेरे से ही डर लगने लग जाए। हमारे पास सिर्फ एक साहिल के पास ही लाइट थी, तो हमें उसको ही बोलना पड़ रहा था कि अभी इधर दिखाओ, अभी उधर दिखाओ। राइट, एंड आई थिंक वहाँ पे भी आप लोगों को सुना था, हाँ, चीज़ें नॉक्स सुने थे। नॉक सुने थे हम। जैसे ही एक डोर थी वहाँ पे, उसके पास जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई नॉक कर रहा है पीछे से।
सो वो बार बार नॉकिंग, पहले अनुभूति ने बोला कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मैंने मुझे नहीं आई थी, मैंने बोला आई सेड मुझे नहीं आई है आवाज़ ना। तो देवर लाइक इधर आओ, इधर से सुनो। तो फिर उन दोनों को सुनी, साहिल को भी सुनी और पार्थ को भी सुनी उसके बाद। देन मुझे तब भी नहीं सुनी थी, मैंने बोला नहीं मुझे अभी भी नहीं आई है। देन उसके बाद वो बोलते थोड़ी और पास आ, तो थोड़ी और पास आने के लिए उन्होंने जैसे बोला तेज़ तेज़ ठक ठक की आवाज़ आई। लाइक हाँ है, चलो यहाँ से नीचे ही चलते हैं। वो स्टेज जैसा बना हुआ था ना, हम बोलते हैं चलो वहाँ से नीचे चलते हैं। फिर हमें वहाँ पे एक परछाई भी दिखी। अगर आप पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो ना, तो वो भी आपको बताएंगे कि ये हमारा वर्ल्ड है, डोंट एंटर इनटू दिस। जैसे कोई हमारे घर में आता है, अगर हमें वो पसंद नहीं है, तो कई बार हम सामने से अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं, बट जो हम अंदर से एनर्जी छोड़ रहे हैं ना, वो सामने वाले को फील हो जाती है कि ये बंदा मेरे आने से खुश नहीं है अपने घर में। तो हमें पैरानॉर्मल वर्ल्ड भी अगर हम उनके स्पेस में एंटर करें, तो वो हमें बोलेंगे डोंट एंटर इनटू आवर स्पेस, दिस इज़ आवर स्पेस। तो हमें अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, हमें बताएंगे कि हम यहाँ प्रेजेंट हैं, दिस इज़ आवर स्पेस, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिस। राइट, दैट इज़ राइट। एंड जब आपका पूरा स्टेज ख़त्म हुआ ऑफ एक्लेमेटाइजेशन, आपको एक वो भी मिला था, नेल, जिसको आपको रखना था। एंड मैंने सबकी बातें सुनी है रिगार्डिंग वो कि ऑब्वियसली एवरीबडी वाज अ लिटिल टेकन अबैक। जो कोई भी होगा, आप उस जगह से लेकर के जा रहे हो उस चीज़ को, एंड देन यू हैव टू स्लीप विद इट। आई कांट इवन इमेजिन वो कितना हॉरिफाइंग होगा। एक नेल, आप अगर किसी चीज़ को कहीं से उठा के ले आओ ना, आपको याद रहती है कि मैं वहाँ से वो चीज़ लेके आया हूँ। और कोई हमारे घर से कुछ लेके, जैसे बचपन में कोई बच्चे आ जाते हैं हमारे घर पे, हमारे टॉयज़ लेके चले जाते हैं, तो उनको हमारे टॉय कोई भी अच्छा लग जाता है, तो हम ऐसे रहता है वो हमारा ना टॉय ले गया था। हम मम्मी को भी कंप्लेन करते हैं कि वो बच्चा आया था, अगली बार वो आएगा हम उसको छुपा के रखेंगे, हम अपने टॉयज़ नहीं दिखाएंगे, उसको क्योंकि बताएंगे अगली बार आए वो। हाँ, फिर बताते हैं हम उसको कि क्या किया था तुमने, हम कि तू मेरा उसके घर पे जाते हैं हम, हमें पहले जाके क्या ढूंढते हैं, हमारा टॉय इसके पास है, वो टॉय देखते हैं इसने क्या किया उस टॉय के साथ। तो वो नेल हमें ला के अपने पिलो के नीचे रखनी थी। उसके बाद ना हम सबको ड्रीम्स आए थे, मुझे भी आया था ड्रीम। मेरे अंकल आंटी थे ना, एक थे मेरे, मतलब सेकंड अंकल आंटी थे मेरे ग्रैंडफादर के जो भाई थे, उनके अंकल, उनकी विद इन 7 डेज़ दोनों की डेथ हुई थी। यस, तो मुझे उनका ड्रीम आया था, मैं उनके घर में कुछ ढूंढ रही हूँ, अंधेर, उनका घर बंद रहता है, मतलब बेसिकली उनके बच्चे वगैरह अब बाहर ही सेटल रहते हैं। तो फिर मैं उनके घर में कुछ ढूंढ रही हूँ, बार बार इधर उधर देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग मेरे से बात करना चाह रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील लाइक कि समवन इज़ रेडी टू टॉक विद मी, एंड आई वॉज लाइक कि मैं बहुत पजल हो रखी हूँ, मैं कुछ कपड़े ढूंढ रही हूँ, वो मेरे से बोल रहे हैं कि वहाँ वहाँ ना ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, उनको ढूंढो। एंड वो बहुत पजलिंग ड्रीम था मेरे लिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे क्या बोला जा रहा है, कोई मेरे से कुछ बात करना चाह रहा है। एंड उस तब भी मेरी आँख खुल गई थी रात में, एंड आई वॉज लाइक कि ये, फिर मैंने देखा नेल है पिलो के नीचे, एंड आई वॉज लाइक अब फिर से सोना है इसी नेल के साथ। तो मैं सो नहीं पाई थी ना तब उठने के बाद, तो मुझे, हमारे पास टाइम नहीं होता था, हमें पता ही नहीं था क्या टाइम चल रहा है क्या नहीं, बट इट वॉज लाइक कि क्या चल रहा है भाई, ये कब ख़त्म होगा, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं अभी, क्योंकि आप किसी नेगेटिव प्लेस पे बार बार जा रहे हो, तो आपकी पॉजिटिविटी कितने टाइम तक ही रहेगी, Correct. वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। एंड आई थिंक वो नेगेटिविटी भरनी भी चालू हो जाएगी। यस, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना, कुछ खाली होता जाता है ना हमारे अंदर, तो साथ साथ कुछ भरता जाता है, कि किसी इंसान के लिए ही लगा लो, अगर हमारे लिए इमोशंस उनके खाली होते जा रहे हैं ना, तो अगर पॉजिटिविटी उनके अंदर जो थी, जो अच्छी चीज़ें हमें लगती थी उनके बारे में, अगर वो खाली होनी शुरू होगी ना, तो उनके लिए जो हमें कुछ बुरी बातें थी ना, वो भरनी शुरू हो जाएंगी, हम अच्छियों को भूलते चले जाएंगे, और जो बुरी थी वो साथ साथ भरनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें चलती हैं, अगर अच्छी खाली हो रही है तो बुरी डेफिनेटली भरेगी, स्पेस जो खाली है वो तो कम्प्लीटली भरना ही भरना है। दैट इज़ सो ट्रू। एंड जैसे यू सेड कि आपको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हाथ दिखा था बच्चे का, हाँ हाँ, उसके अलावा भी आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ दिखा? जब हम राधा भवन में थे, तो फोक की फॉर्म में मुझे एक लेडी स्टेयर्स पे बैठी हुई दिखाई दी थी, फोक की अपीयरेंस ले रखी थी उसने। सो वो मैं फिर उस दिन मैं डर नहीं रही थी, तो मैं बिल्कुल पास गई थी, जब मैं जैसे ही पास गई इट वॉज जस्ट फोग, बट इतनी क्लियर थी कि फोग की अपीयरेंस में कोई लेडी वहाँ पे बैठी थी।
एंड जैसे हमने सुना है इतना, आई इवन टॉक टू अनुभूति रिगार्डिंग दिस कि आप लोगों ने उस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, हाँ बट इंडिया में प्रॉबेबली ये तो बहुत ही कॉमन देखा जाता है कि इसमें तो पोजेशन हो गया है, इस बंदे पे पोजेशन हो गया है, एंड फॉर समबडी लाइक यू जो वहाँ खड़े होकर ट्रिगर कर रहा है उस एंटिटी को, राइट? तो इस चीज़ का रिस्क तो और बढ़ जाना चाहिए ना कि पोजेशन हो जाएगा बहुत। यस, बहुत बहुत इजीली हो जाता है। मैं बता रही हूँ आपको कि वो लोग भी एक वो जो बाउंड्री है ना वो क्रॉस करने से वो लोग भी डरते हैं, जितना हम उस बाउंड्री को क्रॉस करने से डर रहे हैं इतना वो लोग भी डरते हैं। पोजेशन, आप कितना उन चीज़ों को एनकाउंटर कर पा रहे हो, कितना आप उन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी होने दे रहे हो। कई बार वो हमारे इमोशंस पे ट्रिगर करते हैं। टी एस्टेट में मेरे साथ हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है। जैसे मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, फ्रेंडशिप हो गई या फिर किसी के साथ भी जैसे मेरा अच्छा बॉन्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और मैं उस इंसान से दूर नहीं हो सकती। तो टी एस्टेट में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे ना एक क्लियर आवाज़ आई थी जो मैंने मेंशन भी नहीं की थी शायद वहाँ पे अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे बोल रहा है कि अब तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी, तुम देख लेना। एंड आई वाज लाइक कि मे बी मेरे माइंड ने कुछ डेवलप किया या फिर कहीं से अनुभूति या पार्थ वहाँ पे प्रेजेंट उन्होंने कुछ बोला होगा, वो मेरे माइंड ने गलत इंटरप्रेट कर दिया। बट वहाँ से आने के बाद कुछ टाइम बाद मेरी दोस्ती सच में टूट गई थी। यस और आई वाज लाइक कि यार मतलब चीज़ें थी वहाँ पे, मैं लाइटली ले रही थी या क्या चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ना पहले हो जाती हैं बट समझ में बहुत टाइम बाद आती है, समझने में बहुत टाइम लग जाता है हम लोगों को कि क्या चल रहा है। और वहाँ पे वो लोग ना ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगा मे बी वो मेरे लिए कोई दोस्ती ज़्यादा मायने रखती है, वो उस चीज़ को मुझे ट्रिगर कर रहे हैं कि ये ताकि घबरा जाए। जितना आप उन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी होने देते हो ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ें हैवी होना शुरू कर देती हैं आपके साथ। प्लस आई थिंक आप लोगों के पास यू हैड द एक्सपर्ट्स आल्सो यस, टू। हमारे साथ मियान थी जो उसके साथ हुआ था पोजेशन, उसको हो गया था क्योंकि मे बी वो एनकाउंटर नहीं कर पा रही थी उन चीज़ों को। जैसे हम लोग अगर एक टाइम के लिए हमें लग रहा है हमारे ऊपर हैवी हो रही है, तो हम ऐसे हो रहा था कि ये दिस इज़ जस्ट अ इन्वेस्टिगेशन टू अस, तो हम इन चीज़ों को हैवी नहीं होना है, हमें फोकस जो हमारा है वो इन्वेस्टिगेशन पे करना है। मे बी वो फोकस जैसे ही हटता था हमारा, हम लोग खुद भी कई बार ऐसा होता था कि एक पॉइंट पे के लिए ऐसे हो जाते थे कि व्हाट चल क्या रहा है यहाँ पे, एक बार देख लो। चुप भी हो जाते थे हम ट्रिगरिंग करते करते, हम चीज़ों को फील भी करने लग जाते थे, हम बीच में कहीं और भी डाइवर्ट हो जाते थे। जैसे ही फोकस हमारा हमारी इन्वेस्टिगेशन से हटता था वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हैवी हो जाती थी। तो मियान के साथ वही हुआ, वो फोकस उसका इन्वेस्टिगेशन में था, बहुत ज़्यादा था, बट वो इन्वॉल्व भी उतना ज़्यादा हो गई कि वो ये भूल गई कि ये इन्वेस्टिगेशन है, ये सच में नहीं कर रही है वो, और वो पॉजेसिव हो गई उस चीज़ के लिए। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर हम बात करें पोजेशन का, तो व्हाट वी कुड कंक्लूड अभी इज़ कि जितना आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दोगे उतनी ही वो चीज़ आएगी। करेक्ट। यस। एंड आफ्टर डार्क स्क्रॉल एंडेड, ख़त्म हो गया, अभी आप बता रहे थे जैसे यू केम बैक, राइट? कैसे, क्या क्या था? ऑब्वियसली एवरीबडी माइट बी आस्किंग यस यस। कैसा रहा होगा, कैसे रहा होगा। हाँ, तो कैसा था वो? जैसे ही डार्क स्क्रॉल ख़त्म हुआ, सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए थी, हमें अपने मोबाइल्स चाहिए थे। क्योंकि घर वालों से बात किया, आपको बहुत टाइम हो गया, आप किसी के टच में नहीं हो, आप एक अलग ही नेगेटिव वर्ल्ड में रह रहे हो, क्योंकि वो वर्ल्ड बहुत बियॉन्ड है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने जा रहा है। आप किसी के स्पेस में एंटर कर रहे हो, अब उसकी मर्जी है, आप उसके घर में एंटर हो चुके हो, अब उसकी मर्जी है वो आपको कैसे ट्रीट करेगा। इफ़ आई कम टू योर होम, तो मैं नहीं बोलूँगी आप मुझे ऐसे ट्रीट करो, वो आपकी मर्जी है, आप मुझे कैसे ट्रीट करोगे, मेरा बिहेवियर देख के मुझे कैसे ट्रीट करोगे, या फिर मैं क्या करूँगी आपके घर में, कैसे बैठ रही हूँ मैं, कैसे घूम रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप मुझे बोलोगे कि उस रूम में नहीं जाना है, उसमें जाना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हो। वहाँ से आने के बाद हम ऑब्वियसली इन्वॉल्व, दिमाग से नहीं जाती हैं चीज़ें। जैसे ही मैं घर आई, मेरी मम्मा ने मेरी बहन को बोल दिया था कि इसको ना थोड़ी क्लिनजिंग करवा देना इसकी, घर में एंटर करने से पहले तो गंगा जल वगैरह कुछ डाल देना इस पर, तो सो दैट थोड़ा प्योर हो जाए, क्योंकि घर में भी एंटर कर रही है, वो भी उसी घर में रह रही है। तो शी वॉज लाइक कि ठीक है मम्मा, मैं कर दूँगी। मैं काफ़ी रात को पहुँची थी, 1-2 बज गए थे घर पे पहुँचते पहुँचते।
तो जैसे ही मैं एंटर, शी वॉज लाइक वेट वेट, मम्मा ने ऐसे बोला था। मैंने कहा चुप हो जा मैं वहीं से आ रही हूँ, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा, मुझे घर में जाने दे, मुझे नींद आ रही है। शी वॉज लाइक ठीक है, वैसे बोलती, वैसे मम्मा ने बोला था। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं है, मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है यार हमारी मम्मी तो ऐसे हमें ऐसे लगता है ना कि मम्मा ऐसे सलाह देती रहती हैं, मम्मा ज़्यादा फ़िक्र करती हैं बच्चों की, इतना कुछ होता नहीं है फ़िक्र करने का, बट वो फिर भी फ़िक्र करती रहती हैं। तो शी वाज लाइक ठीक है तेरी मर्ज़ी है, वो भी अपने ऑफिस के काम में बिज़ी रहती है, इतना ध्यान नहीं दिया उसने भी, उसको लगा ठीक है इसको ज़्यादा पता होगा, वो वहाँ से आ रही है ये। तो शी वाज लाइक कि ठीक है। उस दिन मैं सो गई। उसके नेक्स्ट डे मेरी बहन को ही गंदा ड्रीम आने लग गए। शी वाज लाइक मुझे ना ऐसे ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, बोलती तू ना प्लीज़ मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव हो रहा दे रही है। कैसे ड्रीम्स मतलब? उसको ऐसे डरावने ड्रीम्स आ रहे हैं। मेरी बहन डरती नहीं है बिल्कुल भी, वो मतलब रात को कितना भी अंधेरा, वो मेरे से भी ज़्यादा बोल्ड है, मतलब डर उसके अंदर 1% भी नहीं है। अगर मैं भी उसको चीज़ें दिख भी जाए ना, वो तो भी ना डरे, रिएक्शन नहीं देती है वो बिल्कुल भी चीज़ों के लिए, बहुत काम है। तो शी टोल्ड मी कि उसको ना बहुत गंदा सपना है, वो चिल्ला के उठी एकदम से। मैंने बोला क्या हुआ? बोलती कुछ नहीं, बहुत ऐसे अजीब से नेगेटिव सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई प्रेजेंट था यहाँ पे। सो आई वॉज लाइक कि अच्छा। मैंने बोला मैंने तुझे कहानियाँ सुना दी ना वहाँ के आके, तुझे तो हो रहा है वहाँ पे मैंने लॉजिक, जब अपने साथ हो रहा था कोई लॉजिक नहीं, दूसरे के साथ हुआ तो लॉजिक ढूंढ दिया मैंने। तो शी वाज लाइक ठीक है, सो गई वो भी। फिर नेक्स्ट डे उसने मम्मी को बताया, बोलती ये तो मान नहीं रही है, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है। मम्मी ने बोला ठीक है इसको बोल कि मंदिर में तो चली जाए, कम से कम मंदिर में चली जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है हाँ, मंदिर में जाने से क्या है, मैं चली जाऊँगी। फिर मैं गई मंदिर में, थोड़ा मैंने हनुमान चालीसा वगैरह किया। तो आई वाज लाइक ठीक है अब मुझे ओके फील हो रहा है, थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा हो रहा था कि मेरी बहन को इतना नेगेटिव फील हो रहा है मेरी वजह से, सो नहीं पा रही है। नेक्स्ट डे मैं जैसे ही सोई, रात हुई, तो मे भी मेरी आदत वहाँ से हो रखी थी, हम रात को शूट करे थे तो 1-2 बजे तक नींद आती थी, तो कुछ 1:30 बजे तक सोई होंगी मैं जैसे ही सोई, सिर्फ मुझे ये पता था हमारी लास्ट इन्वेस्टिगेशन लोहा घाट में हुई थी, बट मुझे वो ड्रीम में क्या आया कि मुझे पूरी लोकेशन वहाँ की पता लग रही है कि ये कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें पर होती थी। लोहा घाट में तो नहीं हुई कोई इन्वेस्टिगेशन? हमारी लास्ट इन्वेस्टिगेशन लोहा घाट थी। पर वो एयर नहीं हुआ? हुआ है एयर, वो अच्छा, वो जगह का नाम लोहा जो घाट है? जगह का नाम लोहा अच्छा, घाट है। आई एम थिंकिंग अरे ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन? नहीं नहीं, लोहा घाट जो है वो प्लेस का नाम है। तो वहाँ की प्लेस के बारे में मुझे एक और चीज़ पता चली कि ना यहाँ पे कुछ ये डॉक्टर वगैरह, और मुझे ना डॉक्टर की शक्ल दिखी ड्रीम में, मुझे डॉक्टर दिख रहा बहुत क्लियरली। सो मैंने सुबह उठी, मैं सुबह क्या उठी, मैं तभी ड्रीम से उठी और मैंने गूगल पे सर्च किया, तभी उठते हैं ना हम कि क्या दिख रहा है ये ड्रीम में, सर्च करते हैं गूगल पे। मैंने देखा और मेरे सामने जो फोटोज़ वगैरह आई, आई लाइक शिट। एंड आपने कभी पहले देखा नहीं था? नहीं, मैं कहाँ से देखती उनको, शूट पे हमें ऐसे थोड़ी ना दिखाई जाती हैं ये चीज़ें, और जितना हमें बताया जाता है उतना ही बताया जाता है, उसके अलावा भी बताया जा रहा। ये तो इन्वेस्टिगेशन से भी ज़्यादा डरावना है। हाँ, और मैंने मेरी बहन को उठाया, मैंने बोला कल ना मंदिर चलते हैं क्लींजिंग कराते हैं। बोलती अब क्या हुआ? मैंने बोला कुछ ठीक नहीं हुआ, जो भी हुआ। मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें मजाक में भी बना दी थी ना, घर पे आके मैं ऐसे बोल रही हूँ, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ना ऐसे भी होता है हम बताते हैं ना मजाक मजाक में, वहाँ पे तो हम कराए उनको एनकाउंटर, बट आने के बाद हम कई बार ऐसे कूल बन के भी बताने लग जाते हैं घर वालों को ना चीज़ें। तो देवर लाइक कि ठीक है। और मुझे क्या दिखा था उसके बाद ड्रीम में, वो लोग ना मुझे बोल रहे हैं कि तुम ऐसे हमारा मजाक नहीं बना सकती, क्लियरली, बहुत क्लियरली बोलते अगर तुमने हमारा मजाक, बहुत दिख रहे हैं मुझे एंटिटीज़ अलग से, बहुत अलग से, मैं वहाँ से पे घूम रही हूँ, मैं वहाँ से भाग रही हूँ, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ना मेरे साथ जैसे मेरी बहन दिख रही मुझे उसी ड्रीम में, और मेरा एक कज़न वो दिख रहा। बोलते हैं हम लोग ना इनको यहीं रख लेंगे अगर तुम ऐसे मजाक करोगी तो। मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं देखो सोच के भी, क्योंकि वो ड्रीम इतना ज़्यादा एबनॉर्मल था मेरे लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अपने घर वालों की, खुद की तो चलो मुझे बोलते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि प्रोटेक्टिव हूँ मैं उनके लिए। सो आई वॉज़ लाइक कि नहीं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने उसको बताया, मैंने उसी टाइम रात के 2-3 तक बज गए होंगे शायद, मैंने पूजा मैम को मैसेज किया, मैंने तभी इंस्टाग्राम पे मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया, मेरे साथ ये हुआ है। शी वॉज़ लाइक कि
स्वाति पहली बात, मजाक मत बनाओ। मैंने कहा हाँ, वो बात तो मुझे भी अब क्लियर हो गई है, मजाक नहीं बनाना है। सो अब अगर मैंने एनकाउंटर किया है तो ठीक है, मैंने एनकाउंटर किया, बट मजाक मैं भी क्यों बना रही हूँ उन सब चीज़ों का। सो आई वॉज लाइक ठीक है, मैं मजाक नहीं बनाने वाली, बट अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें मेरे ऊपर हैवी हो रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे स्टिल उनकी प्रेजेंस फील हो रही है। सो उन्होंने मुझे बताया कि क्लींजिंग वगैरह कराओ अपनी, और मतलब पॉजिटिव ओरा रखो थोड़ा सा। देन वहीं से मुझे बिलीव होना शुरू हो गया गॉड की प्रेजेंस में। वहीं से कि आई वॉज लाइक कि अगर नेगेटिव प्रेजेंट चीज़ें हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिविटी भी होती है। अगर मैं नेगेटिव में मान रही हूँ तो पॉजिटिव भी डेफिनेटली दे रहा है। देन आई स्टार्ट प्रेइंग हनुमान जी, एंड उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव हो रहा मेरा डेवलप हुआ। पता है, अगर आपके पास नेगेटिविटी आपको फील हो रही है ना, तो पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा पावर होती है ना, पॉजिटिविटी वो कुछ भी एनकाउंटर कर सकती है उस चीज़ को। आप डेली हनुमान चालीसा सुबह उठ के, मंत्रस में बहुत ज़्यादा पावर होती है, ये चीज़ मैंने सीख लिया। मैं डेली हनुमान चालीसा करती हूँ, मैं आज भी करती हूँ, मतलब मेरी आदत हो चुकी है अब मंत्रस की। हनुमान जी का एक काफ़ी फेमस मंत्र है, मैं उसकी चांटिंग में भी मेरे दिमाग में 100 बार आती होगी दिन में। मैं बताती हूँ, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्वजो वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ओके, ये हनुमान जी का मंत्र है। मतलब मैं मीनिंग बताती हूँ आपको। मनोजवम, जिसने मन को जीत लिया हो, मारुतुल्य वेगम, और मतलब जो मारुत हवा से भी ज़्यादा तेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिवाइन पावर है। जितेंद्रियम, जिसने हर इंद्रियों को जीत लिया है। और बुद्धिमताम वरिष्ठम, जिसकी बुद्धि सबसे ज़्यादा तेज है। वातात्वजम, जो हवा से भी ज़्यादा तेज है। वानरयुत मुख्यम, जो सभी वानरों का मुख्य है। श्री राम दूतम, जो श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं, उनके जो दास हैं वो, उनको मेरा शत शत नमन। ये काफ़ी डीप मीनिंग। काफ़ी डीप मीनिंग है इसका। सो दिस मंत्र हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर यू। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मंत्र बहुत, आप कोई भी मंत्र ले लो, अगर आप किसी भी गॉड में बिलीव कर रहे हो या कुछ भी बिलीव कर रहे हो, मंत्र आपको बहुत पॉजिटिव बना देते हैं। पिछले 2 महीने से मैंने देखा है, मैंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी, बहुत एक्सट्रीम हो गई थी, कुछ चीज़ें इधर उधर बिगड़ने लग गई थी। तो मंत्रस ने, फोकस ने, और बिलीफ ने, जो आपके अंदर बिलीफ है उसको ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अगेन चेंज कर दी। So I can say I'm a major believer in God also. अमेजिंग अमेजिंग। फिर दिस शो हैज़ डन सो मच फॉर यू, राइट? शो ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हुई है। मैं इतनी, पहले मैं एक नेगेटिव आया मेरी लाइफ में स्टेज, वो बोलते हैं ना कुछ, जैसे मैं बता रही थी पहले रोडीज़ में भी कुछ बुरा पहले हो जाता है अच्छा होने से पहले। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो समझ जाओ कि किसी चीज़ के लिए आपको वो रेडी कर रहा है। उसके बाद मेरे अंदर पॉजिटिव ओरा जो आना शुरू हो गया ना, कि आई एम बिलीविंग इन दीज थिंग्स ऑल्सो। हमारे वर्ल्ड के बियॉन्ड एक वर्ल्ड है, बहुत सारी एनर्जीज हैं जो हमें कंट्रोल कर रही हैं। मैनिफेस्टेशन ऑल्सो वर्क्स। अमेजिंग। सो एक लास्ट क्वेश्चन, Okay. आई जस्ट वांट टू नो, अगर कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पे आप दोबारा इन्वेस्टिगेशन करना चाहोगे तो वो कौन सी होगी, एंड वो किसके साथ होगी, एंड कौन सा डिवाइस वुड यू लाइक टू टेक? मैं बताती हूँ, मेरी दोस्त है, बहुत ज़्यादा डरती है वो मेरा शो भी पूरा नहीं देख पाई तो मैं चाहूँगी उसका डर मैं दूर करके लेके आऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक्सपीरियंस। मुझे नहीं लगता वो रेडी होगी, बट फिर भी दोस्त है, हम मना लेते हैं। मैं उसको लेके जाना चाहूँगी डूंगा हवेली ठीक है ठीक है ठीक है। अभी वहाँ पे मल्टीपल प्रेजेंट हैं, वो लूप में है, एंड यू वांट हर टू एक्सपीरियंस हाँ, दैट। और डिवाइस मैं यूज़ करना चाहूँगी। हमारे पास वो हेडफोन्स दिए जाते थे जिसमें हमें वाइट नॉइज़, यस यस वाइट नॉइज़, और मैं चाहूँगी उसी को सुनवा। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, ऐसा डिवाइस था जो मुझे लगता था कि ये तो Yes. दिस इज समथिंग। मतलब अगर आप वहाँ पे कहो ना कि कुछ नहीं भी है, तो अगर कोई वाइट नॉइज मेरे कान में डाल के मेरी आंखें बंद करेगा तो मैं कुछ भी खुद से कुछ बना उसके लूँगी। बाद आपने अगर बिहाइंड द सीन्स देखे होंगे तो वाइट नॉइज़ की उन्होंने रिकॉर्डिंग्स सुनाई थी। यस। तो उसमें वो लोग दिखा रहे थे कि कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों से भी मिस हो गई थी, हम नहीं इंटरप्रेट कर पाए थे उनको कि क्या हुआ है वहाँ पे।
तो वाइट नॉइज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग आप सुन पा रहे हो, तो मैं चाहूँगी मेरी दोस्त भी सुने। बहुत सही, ठीक है। फिर आई डोंट थिंक उसका डर दूर होगा या वो और ट्रॉमेटिक उसमें जाएगी। नहीं, फिर मैं भी हूँ ना साथ में, Correct. फॉर द सपोर्ट। फॉर द सपोर्ट। तो Amazing. एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को, ये Correct. पता लगाना कि क्या चल रहा है यहाँ पे। करेक्ट। अगर पैरानॉर्मल वर्ल्ड में आप बिलीव भी कर रहे हो तो साथ में ये भी देखो कि हम हमेशा नहीं करने वाली वो आपको चीज़ें, आप उनको एक्सपीरियंस करके आ सकते हो, ज़रूरी नहीं है वो आपको हार्म करेंगी। और हम लोग बोलते हैं कि चीज़ें एनर्जीज हमारे पीछे पड़ जाती हैं, मुझे नहीं लगता वो चीज़ें ऐसे पीछे पड़ती हैं, क्योंकि हम भी अपना जब घर है वो कभी भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो लोग भी अपने घर में खुश हैं, वो अपनी लाइफ में, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, वो आपको भी बोलेंगे कि डोंट डिस्टर्ब अस, जस्ट लेट अस बी इन आवर प्लेस। इसीलिए जब भी हम किसी प्लेस से आते थे हम बोलते थे हम आपको आपके यहीं छोड़ रहे हैं, एंड सॉरी इफ़ वी इंटरप्ट अस योर सेल्फ, एंड आपको अगर गुस्सा आया तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। दैट इज करेक्ट। यस, एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो आपके पीछे क्यों ही आना चाहेंगी जब उनके पास उनका वो ऑलरेडी अपनी उसमें स्टक हैं, तो आप इतने रेलेवेंट नहीं हो उनके लिए अनलेस आप उनको पोक करके उनसे कुछ चाह रहे हो। करेक्ट, राइट, परफेक्ट। सो ऑन अ लास्ट नोट, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू से आउट। यस, जैसे कई बिलीव्स होते हैं ना कि ऐसे ऐसा करने से ऐसा होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि रात को शमशान घाट में जाने से, या फिर किसी भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड में आप एंटर कर रहे हो तो वो रात को मत करो। ऐसा नहीं होता, चीज़ें दिन में भी प्रेजेंट होती हैं, एनर्जीज सच में होती हैं दिन में भी। ऐसा नहीं होता कि कोई टाइम फिक्स है उनका कि वो एनर्जीज तभी प्रेजेंट होंगी। या फिर हम लोग बोलते हैं कि परफ्यूम्स लगा के किसी प्लेस पे मत जाओ, तो परफ्यूम्स, मीठा खा के मत निकलो। तो परफ्यूम के पीछे ये होता है कि हम पहले पिछले पिछले ज़माने से ये चीज़ें चलते आ रहे हैं कि अगर आप परफ्यूम लगा रहे हो तो एनिमल आपको स्मेल कर सकते हैं, तो दैट कैन बी डेंजर, नॉट द पैरानॉर्मल वर्ल्ड। लॉजिक, एंड ये सच में ट्रू है, ये मैंने अच्छा, कंफर्म भी मैंने कर रखा है। इसमें इसी में मेरे को एक और चीज़ याद आई, ये मैंने भी पढ़ा है कि जो बोलते हैं ना कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो वो अपशगुन है, उसका लॉजिक पहले ये था कि पहले पीपल यूज टू बिलीव कि काली बिल्ली मतलब कि कोई बड़ा वाइल्ड कैट, फॉर इंस्टेंस जैसे ब्लैक पैंथर्स वगैरह बहुत घूमा करते थे, Yes. या बिल्ली ही इन दैट सेंस, तो वो ये बोलते थे कि उस रास्ते से मत जाओ क्योंकि उनकी आदत होती है टू कम बैक ऑन दैट Yes. पाथ टू प्रे फॉर यू, ठीक है, Yes. आपको प्रे समझते हैं वो। एंड उसको अब ऐसा बना लिया है कि काली बिल्ली ने रास्ता रास्ता काटा है, काट दिया, अब उसको चलो। क्रॉस नहीं करना है। हाँ हाँ, करेक्ट। सेम थिंग विद हमारे हेयर्स होती है कि खुले बाल छोड़ के मत जाओ। कई बार बोलते हैं ना कि रात को खुले बाल छोड़ के किसी नेगेटिव जगह के पास से, वो उसका वो लॉजिक ठीक है, खुले बाल छोड़ के मत जाओ, क्योंकि ये होता है कि हमारी जो हेयर की टिप होती है ना, वो ना एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब वहाँ से, मतलब आप बोल सकते हो कि कोई वायरस वगैरह प्रेजेंट हो या कुछ, जो टिप होती है वहाँ से ना अट्रैक्ट होती हैं, वायरस हो गया, बीमारी हो गई जैसे कोई भी हो गई, तो वहाँ से वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं। सो दैट्स ट्रू कि ये खुले बाल छोड़ के पर नहीं ये जाना सुपरस्टिशन ऐसा बना दिया है। बट सुपरस्टिशन ये भी बना दिया कि सफ़ेद साड़ी वाले Correct. भूत आएंगे। वो कुछ नहीं है सफ़ेद आपको साड़ी। कोई सफेद साड़ी वाले भूत नहीं दिखे? नहीं नहीं, सफ़ेद साड़ी वाला कोई भूत होता भी नहीं आएगा। एंड वो बाल उल्टे करके हाँ, आगे। पैर उल्टे करके चल रहे Correct, हैं। नहीं correct. नहीं, वो तो मूवीज़ ने बना दिया हमारे अंदर ना कि ये चीज़ें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। कई वो हमें डायरेक्टली नहीं कई बार फील करा सकते, ना हमें दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ है। वो कई बार हमें फॉर्म की फिजी, जैसे मैंने बताया, फोक की फॉर्म ले लेते हैं, टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है, कई बार टच से, कई बार साउंड से, तो ऐसे ऐसे फील होते हैं। Amazing. Thank you. Yes, Thank you so much for being here, for giving all your experiences. It was amazing, you know, hearing it from you. वहाँ तो हमने देखा ही है Yes. on the show, and I'm sure people who have watched till here उनको भी बहुत पसंद आया होगा. And just like I said, I love your personality. I love the way you are. I am so sure कि you know a lot of girls do take power from you. They do take that strength from you, that boldness from you. And again, thank you so much for coming here. Thank you Swati. so much. Thank Thank you. We'll cut this.